Hello students, today we are here to discuss the syllabus of class 7th, and in this video class we are going to discuss chapter number 8, that is Internet and Web Services. So introduction of the Internet. What is Internet and how Internet is affecting our life, our society, our country, our means globally how it is affecting. So just read this. Technology has brought the world closer. Means with the help of technology पूरी दुनिया काफ़ी नज़दीक हो चुकी है. नज़दीक in the sense in the means of communication. We can easily communicate to anyone at any position, at any location. आप कहीं भी हो पूरी दुनिया में, आप किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, पर्सन से, आपके फ्रेंड से, आपके रिलेटिव से, यू कैन ईजिली कम्युनिकेट. मीन्स whenever you will communicate, you will feel that you are communicating real time. Real time communication means जैसा आपको लगेगा कि you are talking face to face. You will not feel that they are situated at a distance. So this is the advantage of technology. That's why we use this term that technology has brought the world closer. And next line, that technology enables us to connect with any person in any part of the world. The same thing we discussed, that it has become an important part of our daily life. As you know, communication is very, very important for us to survive, because without communicating we cannot do anything. So communication is very, very strongly required. So thanks to the technology which has given us the access for very strong communication and very fast and rapid communication as well. So all of these we can do with the help of some internet services or web services available on the internet. Means using internet we can avail these services, and these services are there to help us communicate in a better way. And what are these services and what exactly mean by internet or web services? So just see the next page. Here we have the definitions. So an internet or web service is a service offered by an electronic device to another electronic device, communicating with each other via the World Wide Web. जब आप इंटरनेट या वेब सर्विस की बात करते हैं, इंटरनेट सर्विस या फिर वेब सर्विस की बात करें, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द सर्विस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू जब आप दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग वर्ल्ड वाइड वेब, communicating with each other via the World Wide Web. So that is known as the internet services or web services. So the various services. So when we talk about the various services provided by the web, is that chat, email, video conferencing, social networking, e-learning, e-commerce. So these are the services available on the internet, and with the help of these services we can feel the changes brought by the technology. Technology ने कैसे चीज़ों को और ज़्यादा आसान किया है. These are the example. These are the services of the example that you. So here is the one term written as that real time. And before this page, I also use this term real time communication. You will feel real time communication. So what is that real time? Just read the definition once. Real time text is a text transmitted instantly as it is typed or created. Recipient can immediately read the message while it is being written without waiting. मतलब आपका फ्रेंड अगर आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर आपके कलीग्स हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, एनीवन, इफ दे आर कम्युनिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ चैट सर्विसेज. मेनली ये टर्म आपको चैट में ये फैसिलिटी मिलती है जब आप रियल टाइम टेक्स्ट की बात करते हैं. इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द चैट सर्विसेज. तो जब भी आपको एक मैसेज मिलता है, इंस्टेंटली यू कैन रीड, यू नीड नॉट टू वेट. चैट की बात यही है. अभी आप जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो सपोज यू आर ऑनलाइन एंड योर फ्रेंड इज ऑनलाइन, देन whatever he will be sending you and whatever you will be sending him or her, they will be able to read that message instantly, need not to wait for any. और जैसे ही वो मैसेज को पढ़ते हैं, you will also get the information about that the message is read by someone. So same thing. Now we will discuss chat in details. The word chat means talking or conversing in a light
easy and informal manner. Means you need not to follow the standard procedures and anything. You can just communicate, you can just send your message and you can receive the message. Means you can receive the response of that message also immediately. You need not to wait for a long time. Okay, so the electronic chat refers to any kind of communication between two or more people. The communication occurs through type text message or voice chat. Means whenever we talk about the chat, initially it was only the text message, but now we have the facility to send the voice message also. We can send picture messages, we can send video messages as well. So initially the chat was designed for only the text communication, but right now we have all the facilities. So अगर आप chatting use करता चाहते हैं, आप chat कर रहे हैं, तो you can send the voice message as well, you can send the text message as well, and it offers real-time transmission of the text message from sender to the receiver. आपके पास से मैसेज रिसीवर के पास इमीडिएटली पहुंचेगा और रिसीवर से आपके पास मैसेज इमीडिएटली आएगा. सो यू विल फील दैट रियल टाइम. आप आसपास बैठ के बातचीत कर रहे हैं, जैसे आप दो फ्रेंड आपस में बैठ के बात करते हैं, तो यू नीड नॉट टू वेट फॉर अ लॉन्ग. आप जैसे कुछ कहते हैं, योर फ्रेंड कैन रिस्पॉन्स इमीडिएटली. ओके, योर फ्रेंड कैन रिस्पॉन्ड इमीडिएटली. इन द सेम वे जब आप चैट यूज करते हैं, तो दिस इज पॉसिबल. ओके, so example is WhatsApp. Example of WhatsApp is given here as well, which we are using every day. Okay, right now your class is being communicated using WhatsApp and all other internet medias, Google Meet, etc. So you know very well how WhatsApp is working. Whatever the message, whatever the material is being sent to you, you can check them immediately as you receive the message, and you can respond as well. So now, advantages of the chat. What is the advantage of the chat? It is free of cost. Free of cost means you need not to pay for the chat services. You have to pay for the internet. आप इंटरनेट के लिए पे करेंगे, and once you have the internet connection, you can use chat facility easily with the help of multiple software options available. अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो आपको चैट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं. जस्ट यू हैव टू यूज देम, and almost free of cost you can use chat services, and then it is always there. Means it is the advantage of chat, that is it is always there. Means we can be online anytime, even while working, so that we are always in touch with our friends, colleagues, relatives, family members. It helps us exchange our views on various topics. मतलब there is no time limit कि आप इस टाइम पे ही इसको देख सकते हैं, आप इस टाइम पे नहीं देख सकते. Any time if you have internet connection and you have availability of time, just you have to be come online and you can chat, you can get the message, you can send the message immediately. That's why it is written as that it is always there. Means it is available each and every time. Just you have to be online to check the services, to use the services, to avail the benefit of this. Okay, here is one question is written that write the name of any 4 internet service providers. Here it is written as just service provider, so it is completely internet service providers you are familiar with in the space given below. So students kindly complete these activities given in and every chapter, because it is there for your exercise, for your mind exercise. It will help you to think more, and it will help you to gain more knowledge of this chapter, of the concepts of this chapter. Okay, here it is written, service provider is a company which allows its subscriber to access internet. Subscribers access the internet. Okay, so we were discussing the advantage of the chatting. Here are some more advantages of the chatting, that is ease of accessibility. Chat services are available to everyone. It helps us to remain in touch with our families and friends in any part of the world. But ease of accessibility, it is very easy to access. बहुत ही आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं. It helps us to remain in touch. ये आपको हेल्प करता है. You can be in touch to your friend, family, relatives, colleagues, anyone. और वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, यू कैन कम्युनिकेट वेरी इजीली. बहुत ही इफेक्टिवली और इजीली यू कैन कम्युनिकेट. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज नॉलेज. चैटिंग अपार्ट फ्रॉम मेकिंग फ्रेंड्स ऑल्सो gives an opportunity to know the culture and tradition of the person from other country. Suppose you have a friend that is from another country, and while you are talking to them, and by which mode you are talking with the help of chatting services. So once you will talk, you will come to know about their culture, about their country. So that is also going to help you if you are using in this manner. So it is going to help you also. You will be able to learn new things from new peoples. You will get to learn new things. So
chat services is also there to help you to gain knowledge, but it is not compulsory that every time chat will give you the knowledge. But yes, you can use it in a positive way to communicate with anyone. You can communicate with anyone to gain the knowledge using the chat services, because it is free, it is faster, it is reliable, it is accessible. So in that way you can use it. Okay, you must have seen people using emoticons while chatting with others. Emoticons means they are the icons to express your emotion. Whatever emotion you wanted to express on the chat services, you cannot express, because it is not the video chat, it is just audio chat, text chat. So what you can do, so to express your emotion, we use what? Emoticons. And here, so here written is that this namaste emoticon is used commonly in India. And students perform this activity and research activity also. Okay, because this is very, very important to you all to gain more knowledge related to this chapter. Now we will discuss about electronic mail or email. So this was also listed as the internet or web services. Okay, so this is one of the services available on the internet using which we can communicate easily in a fast and effective way. So here, email is a system of receiving, sending and storing messages. An email can be sent whether or not a person is online. मतलब अगर आपको अपने फ्रेंड को या फिर अपने कलीग को या फिर अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी अगर हम ईमेल भेजना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप जिसे भेज रहे हैं वो भी ऑनलाइन हो. डजंट मैटर कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, डजंट मैटर. जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेंड द ईमेल, और वो ईमेल जो है उनके ईमेल सर्वर पर स्टोर रहता है तब तक जब तक कि वो उसे एक्सेस नहीं करते. ओके, फिर उस ईमेल को पढ़ने के बाद इट इज हिज विश, उनकी इच्छा है कि वो उस मेल को मेल सर्वर पे ही रहने दें, या फिर अपने सिस्टम में डाउनलोड करना चाहें तो वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. लास्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया चैट सर्विसेज की बात की थी. तो चैट में क्या था, दैट इज इफेक्टिव व्हेन बोथ आर द ऑनलाइन. जब सभी ऑनलाइन हैं, दोनों पर्सन जो कम्युनिकेट कर रहे हैं या जितने भी ग्रुप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन है तभी जाके वो इंस्टेंट मैसेजिंग का कॉन्सेप्ट आप यूज कर पाएंगे. ओके, अदरवाइज वो भी एक नॉर्मल एसएमएस की तरह वर्क करेगा. आपने मैसेज भेजा, अगर आपका फ्रेंड जो भी जिससे आप बात कर रहे हैं वो ऑफलाइन है, तो व्हाट विल हैपन, जब वो ऑनलाइन आएंगे तो वो मैसेज पढ़ेंगे, और उस टाइम अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो फिर उनका भेजा हुआ मैसेज आप बाद में पढ़ेंगे, तो एक नॉर्मल एसएमएस की तरह बिहेव करेगा वो. बट दैट विल वर्क रियली इन इंस्टेंट मैसेज, मीन्स रियल टाइम कम्युनिकेशन आप तभी कर पाएंगे यूजिंग चैट सर्विसेज जब दोनों पर्सन ऑनलाइन हो. लेकिन यहाँ पे ईमेल में क्या है, ईमेल हमेशा एक ही तरह बिहेव करेगा. ईमेल इज द ईमेल. यहाँ पे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम इसको माना जाता है कि वट एवर यू वांटेड टू सेंड यू कैन जस्ट सेंड. आप चाहे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करें या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन करें, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट राइट योर मेल, मीन्स यू हैव टू कंपोज योर मेल एंड जस्ट सेंड इट. तो जो आपका ऑडियंस है जिन्हें आपने मेल सेंड किया, मीन्स आपके फ्रेंड, कलीग या फिर कोई भी आपके बॉस हों, आपके टीचर हों, एनीवन, जस्ट यू हैव टू सेंड द मैसेज. और उन्हें ऑनलाइन रहने की कोई जरूरत नहीं है. इफ दे आर ऑनलाइन दैट इज वेरी गुड, वो इंस्टेंटली आपके मैसेज को देख सकते हैं. इफ दे आर नॉट ऑनलाइन डजंट मैटर, यू कैन जस्ट सेंड द मैसेज. एंड टू यूज द ईमेल, टू सेंड द ईमेल, टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल, मीन्स इन वन लाइन, अगर आप ईमेल सर्विसेज यूज करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट ऑन द ईमेल सर्वर, जिस भी सर्वर के सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर द ईमेल लाइक हॉटमेल, याहू, रेडिफ, जीमेल. ओके, सो if you wish to use the services of Yahoo, you must have an account on the Yahoo. If you wish to use the services of Rediff, you must have the email account on the Rediff. And every email server have their own terms of conditions which you have to follow to create the account there. Okay. Now the advantages of the email. So it is easy to use. We can send and receive email messages and save them on our computers. बहुत ही आसान है आपको मैसेज भेजना, मैसेज को पढ़ना, और if you wish you can download your computers also. Fastest means of communication. They are delivered at once around the world. No other form of written communication is as fast as an email. तो यहाँ पे क्या है कि आप इसको सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब, यू कैन सेंड द मैसेज.
एंड द वेरी फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज जब भी रिटन कम्युनिकेशन की बात की जाती है, तो जो रिटन कम्युनिकेशन की बात की जाती थी, तो पहले क्या था रिटन कम्युनिकेशन में, वी यूज टू सेंड द लेटर्स जब आप सेंड करते थे कम्युनिकेशन के लिए, तो लेटर्स को पहुंचने में 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, फिर कुरियर आया, 1 डे होने लगा, ओवरनाइट डिलीवरी होने लगी। बट स्टिल इन सब में जब कम्युनिकेशन करने का, रिटन कम्युनिकेशन का जो फास्टेस्ट मोड माना जाता है, दैट इज द ईमेल। आपने मैसेज लिखा और सेंड बटन प्रेस करते ही वो पहुंच गया, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में भेजना चाहते हो। ओके, यू आर इन इंडिया, आपको ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, किसी को भी भेजना ओवर द सी, व्हाट यू हैव टू, जस्ट यू हैव टू सेंड द मेल, और मैसेज अगले सेकंड वहां भी पहुंच चुका। बट अभी दूसरा कोई भी मीडियम ऐसा नहीं है जो आपके रिटन कम्युनिकेशन को इतनी फास्ट तरीके से हेल्प करे कम्युनिकेट करने में। ओके, नाउ इट इज इजी टू कंपोज। द लैंग्वेज यूज्ड इन ईमेल इज सिंपल एंड इनफॉर्मल एंड हेंस आर इजी टू कंपोज। मीन्स ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं है। वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट टू एन ईमेल, जस्ट यू हैव टू ओपन द ईमेल अकाउंट एंड what you can do, you can just type your message and you can send. Eco-friendly, hence जब भी हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते तो अर्लियर हम पेपर यूज़ करते थे, उसको सेंड करने में भी पेपर यूज़ होता था, क्योंकि उस मैसेज को एक एनवलप में पैक करते थे, फिर उसको सेंड करने के लिए जैसे जिस ऑफिस से जाता है वहाँ पे आप रिकॉर्ड मेंटेन करते, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पेपर इज बीइंग रिक्वायर्ड, अर्लियर यूज़ होता था। बट नाउ व्हेन यू यूज़ ईमेल, आपको कहीं भी पेपर पे रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू सेंड द मेल। आपके ईमेल सर्वर पे उसका रिकॉर्ड है कि आपने मेल कब भेजा था, किसे भेजा था, किस टाइम पे भेजा था, और जिसके पास पहुंचा उनके पास भी रिकॉर्ड है कि उनको कब मिला था। वो चाहे कितने दिनों बाद एक्सेस करें, बट उनके पास पहुंचा कब, ये रिकॉर्ड आपके पास भी है, क्योंकि आपने जब भेजा तो तभी उनके पास पहुंच गया। सो इट इज़ इको फ्रेंडली, इट इज़ हेल्पिंग यू, मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू वेस्ट द पेपर, एंड इफ यू आर नॉट वेस्टिंग पेपर, इट मीन्स यू आर हेल्पिंग टू नॉट कट द ट्रीज। जब आप पेपर नहीं यूज करेंगे तो पेड़ कम काटे जाएंगे, और पेड़ कम काटे जाएंगे तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर एनवायरमेंट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली। मल्टीपल यूजर्स, emails can also have multiple uses. Emails can also have pictures in them. We can send birthday cards or newsletters as emails. मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको रिटन कम्युनिकेशन के लिए या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ ईमेल फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एज वेल। मतलब आप अपने दोस्तों से बातचीत करना, हंसी मजाक करना, उन्हें कुछ सेंड करना, कुछ वीडियो सेंड करना, आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को बर्थडे विश करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें इमेज लगाइए, वीडियो बना के भेजिए, ऑडियो भेजिए, एनीथिंग यू विश यू कैन डू। It is not only for the official communication, it is for informal communication as well. Bulk messaging means हम एक साथ मल्टीपल यूजर्स को भी मेल सेंड कर सकते हैं। We can easily send bulk messages to a large number of people simultaneously. This is commonly used in companies for advertising and marketing their products. Lots of business houses nowadays use emails for exchange of information. जैसे आप एक कंपनी में हैं, आपको उस कंपनी की एडवर्टीजमेंट करनी है, तो आपके पास 5000 लोगों का या फिर आपके पास बल्क यूजर डेटा है, आप सबको उस मैसेज को भेजना चाहते हैं, यू हैव द ऑप्शन टू सेंड देम ईमेल। मोर देन 500 पीपल्स को आप एक बार में मेल कर सकते हैं। मोर देन 500 पीपल तो आप एक बार में मेल कर सकते हैं। अगर आपको 5000 लोगों को सेंड करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू सेंड 10 ईमेल्स। एक ईमेल में 500, एक ईमेल में 500, यू हैव जस्ट सेंड 10 ईमेल्स और आप 5000 लोगों तक पहुंच जाएंगे। बट अगर आपको फोन कॉल करना हो तो यू हैव टू मेक 5000 कॉल्स। आपको एसएमएस भेजना हो तो सेम मैसेज यू कैन फॉरवर्ड अगेन एंड अगेन, बट व्हाट यू हैव टू डू टू सी द डिफरेंसेस। तो यहाँ पे आप बल्क मैसेजेस कर सकते हैं। नाउ ऑफिशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, नाउअडे मैक्सिमम कंपनीज जो हैं अब ईमेल कल्चर को अडॉप्ट कर चुकी हैं और वो ईमेल पे ही अपना रिटन कम्युनिकेशन करती हैं, बिकॉज यहाँ पे रिकॉर्ड रखना भी आसान है। आप एक क्लिक में सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ देख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज नाउ मेड ऑफिशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स, स्पेशली इन पेपरलेस ऑफिसेस। कुछ ऑफिसेस जो हैं अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि जस्ट वी आर पेपरलेस ऑफिस, मीन्स कम से कम पेपर यूज करते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां पेपर नहीं यूज किया जाता है। मैक्सिमम काम डिजिटली या फिर ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हैं, सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। सो ईमेल इज देयर टू हेल्प यू टू मेक योर ऑफिस पेपरलेस। सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ दिस इज द रिसर्च एक्टिविटी। स्टूडेंट्स प्लीज कंप्लीट दिस ऑल्सो, दिस इज फॉर योर हेल्प। Now we are talking about the video conferencing. Next topic is that video conferencing. वैसे conferencing word is known to you all, I think.
सबसे पहले आप वीडियो हटा दें। तो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स जब आप मोर देन 2 पीपल को जब आप एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज नोन एज द कॉन्फ्रेंसिंग। ये आपके नॉर्मल ऑडियो कॉल्स में भी अवेलेबल है। तो आप जब फ़ोन करते हैं तो अभी क्या है, मैक्सिमम 6 पीपल्स कैन कम्युनिकेट ईजिली। 6 लोग एक साथ ऑडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्फ्रेंसिंग। ऐसे जब आप किसी को कॉल करते हैं तो व्हाट हैपेंस, सिर्फ 2 लोग बात करते हैं। लेकिन जब आप चाहते हैं कि 6 अलग अलग जगह बैठे लोग एक साथ कम्युनिकेट करें, तो दैट इज नोन एज द कॉन्फ्रेंसिंग। और जब इस कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो यूज करते हैं, मतलब अब आपका ऑडियो वीडियो बोथ द मैसेज विल बी सेंट एंड रिसीव्ड, दैट इज नोन एज द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब आपको ऐसा लगेगा कि यू आर टॉकिंग फेस टू फेस। जैसे आप चैट, अभी तक अपने चैट सर्विसेज की बात की, चैट सर्विसेज में क्या फील किया था आपने, क्या आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन का फीलिंग आएगा। मीन्स आपको लगेगा आपका फ्रेंड आपके बगल में बैठा है और आपसे बात कर रहा है, लेकिन आप उसका चेहरा नहीं देख पाएंगे। यू विल बी फीलिंग दैट हम पास होकर बात कर रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन डिले नहीं होगा। आपने जो कहा तुरंत उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एग्जैक्टली आप फेस रियल कम्युनिकेशन फील करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपके सामने भी दिखाई देगा। सपोज योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड कभी कोई अमेरिका में है, कोई जापान में है, कोई कनाडा में है, कहीं पे भी है, और यू आर इन इंडिया। जस्ट 4 लोग आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कनेक्ट हो जाइए और बात कीजिए। डजेंट मैटर कितने डिस्टेंस पे आप एक दूसरे से लोकेटेड है, यू कैन कम्युनिकेट इजिली। आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, जो न्यूज़ एंकर जो हैं मल्टीपल लोगों के साथ एक साथ बात करते हैं। क्या वो स्टूडियो में होते हैं उनके? नो, दे आर एट देयर होम, दे आर इन देयर सिटीज़। डिफरेंट सिटीज़ के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और सब एक न्यूज़ चैनल पे आपको एक साथ दिखाई देते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पे आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन एग्जैक्टली फील होगा, जैसे आप और आपके फ्रेंड आसपास बैठे हो, with picturization also. This is done with the help of video conferencing. Video conferencing allows users in different locations to hold face-to-face meeting without having to move to a single location. अलग अलग शहरों में बैठे लोग एक साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनको किसी एक जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट अपने घर पे बैठे हैं और यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर दे कैन कम्युनिकेट। ओके, दे कैन कम्युनिकेट दिस वे। Using internet through video conferencing, users can transmit both the video and audio data. तो जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज करते हैं तो वीडियो एज वेल एज ऑडियो डेटा भी ट्रांसफर किया जाता है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है? जब भी हम बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो वी नीड सम हार्डवेयर्स। एंड व्हाट इज दैट? फॉर वीडियो इनपुट वी रिक्वायर वीडियो कैमरा और वेब कैमरा। एंड वीडियो आउटपुट के लिए हमें कंप्यूटर मॉनिटर चाहिए, या फिर प्रोजेक्टर चाहिए, या फिर टेलीविजन चाहिए। एनी डिवाइस विच इज गोइंग टू हेल्प अस टू गेट द आउटपुट ऑफ द वीडियो। ऑडियो इनपुट के लिए हमारे पास माइक्रोफोन होना चाहिए, या फिर CD DVD प्लेयर दैट हैविंग द माइक्रोफोन फैसिलिटी, या फिर आप CD DVD प्लेयर से भी ऑडियो इनपुट करा सकते हैं। नाउ ऑडियो आउटपुट के लिए यूजुअली लाउड स्पीकर्स, मीन्स दैट इज योर स्पीकर्स, एंड एसोसिएटेड विद द just one second, usually loudspeakers associated with the display devices or telephones. Exactly हमें ऑडियो आउटपुट के लिए क्या चाहिए? हमें स्पीकर्स ही चाहिए, बट यूजुअली ये स्पीकर्स आपके डिस्प्ले डिवाइस के साथ या फिर आपके मोबाइल टेलीफोन के साथ ये बाय डिफॉल्ट होते ही हैं। बट स्टिल इफ यू वांट, यू हैव द ऑप्शन टू कनेक्ट एक्सटर्नल साउंड ऑडियो डिवाइसेस दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर ऑडियो आउटपुट। ओके, एंड फॉर डेटा ट्रांसफर मीन्स फॉर इंटरनेट What we require? LAN और इंटरनेट। LAN मीन्स अगर आपके ऑफिस का इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको उसके LAN ग्रुप में कनेक्ट होना पड़ेगा, या फिर आप अपने घर भी यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज इंटरनेट। नाउ कंप्यूटर्स विथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं यूजिंग योर मोबाइल, यूजिंग योर लैपटॉप, यूजिंग योर कंप्यूटर, तो उस कंप्यूटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे नाउ डे ऑन व्हाट्सएप यू कैन ऑल्सो मेक वीडियो कॉल्स, ऑन गूगल मीट ऑल्सो यू कैन मेक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, Skype is there. Okay, so these are the softwares you require, these softwares for video conferencing. Now we will now see the hardware devices required for video conferencing. जो भी हमने लिस्ट में देखा, अब यहाँ पे देखें, this is the codec. Codec means this is a device which compresses the data for faster transmission and after receiving it decompresses data. जैसे आपने डेटा आपने सेंड करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा यानी आप डेटा सेंड करेंगे, तो ये जो कोडेक है आपके डेटा को कंप्रेस करेगा ताकि डेटा काफ़ी फास्ट स्पीड में आगे चला जाए, और वहाँ से जो डेटा आएगा मीन्स आपके जो सामने की ऑडियंस है जिनसे आप बात करें उनका भी तो वीडियो इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा, उस इन्फॉर्मेशन को ये
ऑलरेडी कंप्रेस करके आया हुआ है, यहाँ पे आएगा। तो ये डिवाइस, ये जो आपका कोडेक है, दैट विल डिकम्प्रेस दैट फॉर यू, और डिकम्प्रेस करके आपके आउटपुट डिवाइस को देगा, जिससे आप डिस्प्ले देख पाएंगे क्लियर। तो कैमरा चाहिए आपकी वीडियो इनपुट के लिए, जिससे आपका पिक्चर आगे की तरफ ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। आपको डिस्प्ले डिवाइस क्यों चाहिए? ताकि जो वहाँ से वीडियो इन्फॉर्मेशन आ रही है आप उस पर देख सकें। माइक्रोफोन क्यों चाहिए? ताकि आपकी ऑडियो इंटरनेट पे ली जा सके, यहाँ से सेंड किया जा सके। एंड स्पीकर्स और हेडफोन्स रिक्वायर फॉर दैट, ताकि वहाँ से जो ऑडियो इन्फॉर्मेशन आ रही है आप उसे सुन सके। तो ये डिवाइसेस आपको दोनों तरफ चाहिए, मीन्स सेंडर की तरफ भी चाहिए और रिसीवर की तरफ भी चाहिए। अगर आप सेंडर हैं और मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे, तो आपका फ्रेंड रिसीवर हुआ, तो जब आप डेटा सेंड कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ डेटा आ रहा है, उसको आप रिसीव भी तो कर रहे हैं। इन द सेम वे यू रिक्वायर डिस्प्ले डिवाइसेस एंड स्पीकर्स। स्पीकर चाहिए ऑडियो सुनने के लिए, और डिस्प्ले डिवाइसेस चाहिए उनका पिक्चराइजेशन देखने के लिए, जो भी पिक्चर वहाँ से आ रहा है। और आपका कैमरा क्यों चाहिए? ताकि आपका पिक्चर आपके फ्रेंड के डिस्प्ले डिवाइसेस तक पहुँचे। और आपका माइक्रोफोन क्यों चाहिए? ताकि आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड करके आपके फ्रेंड के हेडफोन तक पहुँचाया जा सके। So these devices are required at both ended for successful video conferencing, and of course video conferencing software भी चाहिए आपको। This codec you can understand that your video conferencing software, आप इस codec को ये समझिए कि वो आपका video conferencing software है। ये सारे devices उस software से connect हो जाएंगे दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ इन devices की बराबर ही need है, और in this way you can communicate very easily, very efficiently, very smoothly. Okay, so a real-time communication you will feel. So this topic we will discuss in the next class, advantage of video conferencing and some remaining topics of this chapter. So for today's video class, this is enough. Thank you.